Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. This is Madhav Pathak from Law Department. Today I am going to deliver my lecture on intellectual property rights and the topic is patent law. To know about the patent law, it is necessary to know about the intellectual property rights. What is property? Property includes two kinds of property, that is corporal property or incorporeal property. And corporal property includes like land, like trees, like buildings, these kinds of corporal property, and incorporeal property includes intellectual property. Intellectual property. What is intellectual property? You will have to know about the intellectual property. Intellectual property is the creation of mind. Intellectual property is the creation of mind and individual which has commercial moral value like mind values. If you are creating any product, then you will have to know that is that thing which is created by your mind, that is intellectual property, and it comes by the valuable. It may be valued by commerce, it may be valued by morals. Intellectual property rights grants exclusive rights to an author. Author includes any person who produce anything by your mind. An author for utilizing and benefiting from their creation. Like you are creating any product, then you will go to the patent or you will go to the copyright, then you have the exclusive right provided by the sovereign authority by which you can earn by production, by selling your product. There are some kinds of intellectual property. First is copyright. Copyright property, patent property, trademark property, design property, database property. These kinds of property includes under the intellectual properties, and these rights are protected by sovereign authority by laws. There are some laws by which your product which is created by your mind can be saved by sovereign authority rulings. For copyright, there is Copyright Act. For patent, there is Patent Act. For trademark, there are Trademark Act. Design for securing your designs, for earning from your designs, there is also a Design Act and Database Act. To know how could we can gain patent rights, how could you save your patent rights? For it, you will have to know what is patent. Patent means a product for which, for taking license, taking grants. Target is product or method. How it will be registered, what necessities are required for registration. Your product must be new, differs from fundamentally. If you are creating a product for patenting, there is necessary to differ from other products. If in market anything is available, you will have to create some new, by which that will be differed from first. And the others and industrially applicable. उसकी क्या है कैटेगरी, ये होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो उसको आपको नया होना चाहिए अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल जैसे नीम है, हल्दी है. इसके पहले हमारे यहाँ पे भी नीम और हल्दी से कीटनाशक दवाई तैयार की जाती थी. हम और इन इंटरनेशनल लेवल देयर आर मेनी पेटेंट्स रिगार्डिंग टू नीम एंड हल्दी. Before, because we were not aware about the patent. In 1970 there was Patent Act 1970. It was created by the Indian government. Before independence, there is no law regarding intellectual property right, and no one knows about the patent. And we were like in agriculture, we are using neem. We are using agriculture raw materials for production and agriculture. But whenever we sees in the international map, neem has patent, haldi has patent, but we have the product, we have
समथिंग विच वुड बी पेटेंट, बट व्हेन जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि हम नीम का उपयोग कर रहे हैं, नीम का सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ पेटेंट. So then we had created Patent Act and we created a procedure how to gain patent for our mind प्रोडक्शन. हमारे माइंड की जो उपज है उनको हम क्यों पेटेंट कराएं और क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके रिगार्डिंग ये लॉ है पेटेंट लॉ. Definition of patent. Here it is necessary to know what is patent, what kinds of patent. In last chart we have discussed in shortly what is patent, what will be patent, how it will be registered, what will be the matter for patent. Definition of a patent is the granting of a property rights. I had told in last slides that it is the property rights and that is intellectual property rights. Patent is the granting of property rights by a sovereign authority. To know about the sovereign authority, who will be the sovereign authority? Here is necessary to know sovereign authority. In India, that is central government. Central government shall create a board by which the patent rights shall be granted. To an inventor, a person who is inventing any product, a person who is creating any new research, he will be an inventor. So it's a granting property rights by sovereign authority to an inventor. और उसके कुछ राइट्स होंगे, पेटेंट राइट्स होंगे. उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कोई नई चीज़ पेटेंट कराता है और प्रॉपर्ली चैनल फॉलो करता है, उस चैनल को फॉलो करने के बाद वो व्यक्ति के पास अधिकार होंगे कि वो उसका प्रॉपर्ली यूज़ करे. उसके प्रोडक्शन राइट्स उसके पास होंगे, उसके सेलिंग राइट्स उसके पास होंगे और उसको किसको उसका कंजप्ट करने देना है, किसको राइट्स देने हैं, वो सारी चीज़ें उस व्यक्ति के पास होंगे. This grant provides inventor exclusive rights to the patented process rights, design rights, invention for a designated period. What will be a designated period? Designated period will be 20 years. In Patent Act, it is mentioned a patent rights which is provided by patent law shall be designated for a 20 years. 20 साल तक के लिए आपको पेटेंट दिया जाएगा और 20 साल के बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा. क्लियर? इन एक्सचेंज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन. उस पे सारे इन्वेंट्री राइट्स, प्रोसेस राइट्स, डिजाइन राइट्स आपके होंगे, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन. The invention must be different from an improvement, as well as I told in last slides. The invention must be different from other. If there is any product, for example, जैसे सिर दर्द के लिए झंडू बाम चलती है. झंडू बाम के अलावा यदि आप दूसरा कोई इन्वेंशन करते हैं जो आपके सिर दर्द को दूर करता है, तो उस स्थिति में आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि झंडू बाम इस चीज़ पे काम करता है और मेरी ये मेडिसिन इस वे पे काम कर रही है. और यदि अथॉरिटी समझती है इस चीज़ को कि आपका जो प्रोडक्ट है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम झंडू बाम फॉर हेड पेन, then it will be registered, it will be granted by the sovereign authority. So this is patent. Patent law is not very new. Before it there were many conventions were held for inventing these patent rights. Next, प्रोसीजर फॉर पेटेंट. आज के समय में भारत में या अमेरिका में या कहीं पे भी हम आप जाते हैं वहाँ पर पेटेंट राइट्स की चर्चा होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चर्चा होती है. आज हम प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास बिल्डिंग है, इनके ट्रांसफर्स होते हैं. अब विश्व एक नई जगह पे पहुंच रहा है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब आप कहेंगे कि भारत का ऑफिस जो पेटेंट का ऑफिस है वो केवल भारत के लिए पेटेंट देता है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पेटेंट राइट्स है इनको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है. ये भी हो सकता है कि इसके पहले कई कॉन्वेंशंस पेटेंट्स पर हुई हैं. उन कॉन्वेंशंस में
इंटरनेशनल लॉ की जो ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज, जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ट्रीटीज की बात करते हो। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एक साथ मिलकर आपस में समझौता करती हैं कि यदि कोई पेटेंट होता है और उनके ऑफिसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और पोलैंड के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है कि हमारे दोनों कंट्रीज़ में यदि कोई पेटेंट राइट्स आएंगे तो हम दोनों, जिसके पास पेटेंट को जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उसके रजिस्ट्रेशन और उसके फाइनलाइजेशन में जो पहले पा जाता है उस चीज़ को, उस स्थिति को पेटेंट राइट्स ग्रांट कराए जाएंगे। अब ये प्रोसीजर देखिए। टू अप्लाई पेटेंट इन इंडिया द एप्लीकेंट सबमिट्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड पेज एसोसिएटेड फीस। जब आप कोई आवेदन करेंगे पेटेंट के लिए तो पहले नंबर आप उसके जो कॉलम्स होते हैं पेटेंट फॉर्म के, उन फॉर्म्स को भरेंगे और उसकी जो फीस होती है उस फीस को आप पे करेंगे। देन आपकी ड्राइंग्स, हो सकता है आपने कोई ड्राइंग बनाई हो सकता है आपने कुछ डिस्क्रिप्शंस बनाए हों या आपके कोई क्लेम्स हों, इन विषयों के बारे में आप सारी जानकारी उस आवेदन फॉर्म में फिलअप करेंगे और उसके संबंध में देयर विल बी अ फॉर्मल ओथ। आप आवेदन के साथ में एक एफिडेविट लगाएंगे कि इसमें जो जानकारी आपने भरी हुई है दैट इज़ ट्रू इन माय नॉलेज, और मैंने किसी का प्रोडक्ट स्टील नहीं किया है। उसके रिगार्डिंग आप एक डिक्लेरेशन भी देंगे, कंफर्म करेंगे। सो दिस विल बी द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ओनली। प्रोसीजर अंडर पेटेंट एक्ट 1970। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, अभी एक अपडेटेड पेटेंट एक्ट भी आया जिसमें काफ़ी चीज़ें एंटर की गई हैं। पेटेंट एक्ट 2005, इसमें सेक्शन 3 में एक क्लॉज जोड़ा गया है कि पेटेंट बनाया जाएगा, पेटेंट बनाने के पहले ये चीज़ देखी जाएंगी कि उसमें कुछ नया क्या है और उसका प्रोसीजर जो बनाया गया है वो सेम तो नहीं है, कहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं है, वहाँ पे डिफर चीज़ें देखी जाएंगी। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, कोई भी ऐसी चीज़ का पेटेंट नहीं किया जाएगा जो एनवायरनमेंट को हार्म करे या किसी को क्षति पहुँचाए। ये चीज़ अभी 2005 के एक्ट में बताई गई है। ये प्रोसीजर है कि सेक्शन 6 से लेकर 11 तक एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया आप अपना नाम भरेंगे, आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके बारे में बताएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, क्या आपका कंपोजिशन था, वो सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। दैट विल बी मेंशन इन सेक्शन 6 to 11। अब जो आवेदन कंट्रोलर के पास, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जो अथॉरिटी होती है कंट्रोलर के पास होता है। ट्रेड यूनियन एक्ट में उसके बारे में बताया गया कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट का कंट्रोलर होगा वही अधिकारी पेटेंट से रिगार्डिंग कार्यवाहियों को संचालित करेगा। ये आवेदन आप पेटेंट के अधिकारी कंट्रोलर के पास जमा करेंगे। उसका क्या होगा, पब्लिकेशन होगा और एग्जामिनेशन होगा। पब्लिकेशन में ये सूचना प्रसारित करी जाएगी कि इस प्रकार का पेटेंट राइट्स एक्वायर करने के लिए इस पेटेंट होल्डर व्यक्ति ने आवेदन किया है। यदि किसी का प्रोडक्ट इससे मैच करता है या किसी को कोई आपत्ति है, देन प्लीज यू मे कम टू कंट्रोलर ऑफिस एंड यू कैन वेरीफाई इट एंड योर अपोजिशन यू कैन बी फाइल्ड। नेक्स्ट है, उसको एग्जामिन भी करेगा। हमारे पास, उनके पास एक रजिस्टर होता है पेटेंट का कि ऐसा कोई और पेटेंट तो नहीं कराया गया, तो जो कंट्रोलर होगा या कंट्रोलर की जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज होंगी वो उस चीज़ को एग्जामिन करेंगी कि जो पेटेंट राइट मांगा गया है दैट इज़ ट्रू और इसके पहले कोई पेटेंट इसके संबंध में नहीं कराया गया है। इसके बाद है अपोजिशन। आपने एप्लीकेशन किया, पब्लिश हुआ, पब्लिश के बाद कुछ लोग आ गए कि ये जो पेटेंट है ये पेटेंट मेरे द्वारा कराया गया है। उस स्थिति में उस अपोजिशन को टैली किया जाएगा, उस अपोजिशन को सुना जाएगा और अथॉरिटी देखती है कि अपोजिशन इज प्रॉपर, देन यहाँ पे भी आपका जो एप्लीकेशन है वो क्लोज किया जा सकता है, कंट्रोलर आपको मना कर सकता है। इफ़ अगर अपोजिशन जो थी दैट इज वाज नॉट ट्रू एंड योर पेटेंट प्रोडक्ट इज डिफरेंट विच इज द ऑब्जेक्ट, देन यू विल हैव राइट टू गो प्रोसीड अनदर स्टेज। अगर कोई नहीं आती है तो आपके पास आप आगे बढ़ेंगे, एक अमेंडमेंट प्रोसीजर मिलेगा आपको 57 से 59 के बीच में।
कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अपोजिशन में आई थी, उनमें मैं करेक्शन करके मेरा पेटेंट कंटिन्यू हो सकता है, तो आप अपने एप्लीकेशन में अमेंडमेंट का पावर रखते हैं और 57 से 59 के क्लॉजेस का उपयोग करते हुए आप उनको अमेंड करा लीजिए। कन्वेंशन एप्लीकेशंस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि मैंने आपको अभी कन्वेंशंस के बारे में बताया था कि कुछ कन्वेंशंस होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है भारत ने कई राष्ट्रों के साथ पेटेंट संबंधी कुछ समझौते किए हुए हैं, उन कन्वेंशंस को एक बार टैली किया जाएगा। 133 से 139 में इस संबंध में बताया गया है कि यदि किसी का आवेदन उन देशों में जिनके साथ आपके राजनयिक समझौते हैं पेटेंट को रिगार्डिंग, तो उनके साथ टैली किया जाएगा कि जो प्रोसेस इनके द्वारा किया जा रही है, कोई वो आवेदन, इस आवेदन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो नहीं हो रही, कंट्रोवर्सी तो नहीं आ रही, तो उस कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के बाद उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। यदि अपने यहाँ का संबंध किसी अमेरिका की बायलॉज से होता है, वहाँ पे भी पेटेंट से आपकी कोई ट्रीटीज हो, कन्वेंशन है, तो जहाँ जिसका आवेदन पहले आया था और उसके प्रोडक्ट की सारी जानकारी ली जाएगी, उस पेटेंट राइट को जिसने आवेदन पहले फाइल किया है उसको प्रायोरिटी देकर उसके पेटेंट प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा। 133 टू 139 इसके बारे में बताया गया है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेंट और एजेंट। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं। आप जानते हो कोर्ट के प्रोसीजर में या तो व्यक्ति खुद जाके अपना आवेदन करता है या फिर कोई एजेंट यानी एडवोकेट के माध्यम से होता है। तो इन यहाँ पे पेटेंट ऑफिसेस में पेटेंट एजेंट भी होते हैं और वो एजेंट वही व्यक्ति होते हैं जो कंट्रोलर की एक डिग्निटी रखते हैं, उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, उनके अंतर्गत ये लोग भी एजेंट हो सकते हैं। और इस एजेंट के आवेदन पर यह भी देखा जाता है कि इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया था। इस एजेंट को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया था तो वो आवेदन आपका मान्य नहीं माना जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपका पेटेंट एप्लीकेंट होता है वो भी जाकर डायरेक्ट सबमिट कर सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोसेस है उसको, ये सारी प्रोसेस फुलफिल करके। नेक्स्ट है ग्रांट। अगर आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, नीट क्लीन है, आपका प्रोडक्ट डिफर है और प्रोडक्ट आपका नया है और कुछ चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, तो आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। 43 से 53 के अंतर्गत ये प्रोसीजर बताया गया कि पेटेंट ग्रांट करने में कंट्रोलर किन किन अथॉरिटीज़ को फॉलो करेगा। आपका पेटेंट फाइनल हो गया, ग्रांट कर दिया गया, लेकिन जो आपका अपोजिशन था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि उसने भी सेम प्रोडक्ट बनाया था। देन यू हैव द राइट टू गो अपील 117A to and 117E. There were two clause only in which you can appeal in higher court. जो भी आपने आवेदन किया है वहाँ पर आप उसकी अपील कर सकते हो। ये कोई परिषद होती है, उस परिषद में भी अपील कर सकते हो या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। आप उस जो आपकी डिस्प्यूट पैदा हुए हैं, यदि आपको लगता है कि हमारा जो ग्रांट नहीं किया गया, या तो ग्रांट कर दिया जाएगा या नॉन ग्रांट कर दिया जाएगा। ग्रांट किया जाता है देन यू आर सेटिस्फाइड, अगर ग्रांट नहीं किया जाता तो आप अपील में जाओगे कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो सही था और किसी प्रकार की कॉपी वॉपी मैंने नहीं की है। लास्ट है रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। रिस्टोर कैसे होगा? रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट का मतलब ये है कि आपने आवेदन किया, आप फीस नहीं भर पाए, उसकी जो है कुछ कॉलम थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसके कारण आपको आपका आवेदन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जैसे ही आप अपने उस कारण को, अगर आप अपने उस कारण को एक्सप्लेन कर देते हैं और जो कंट्रोलर है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आपका जो रीजनेबल कॉस्ट था जिसके कारण हम वो फीस जमा नहीं कर पाते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपके आवेदन को, पेटेंट एप्लीकेशन को वो रिस्टोर कर देगा और आपका पेटेंट की जो प्रोसेस होगी उसको फॉलो करने के बाद वो पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। एक बात और है, सरेंडर और रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। ये 63 से लेकर 66 तक बताया गया। आप चाहते हो कि मैं अपने पेटेंट राइट्स सरेंडर करना चाहता हूं, यू विल हैव टू मेड एप्लीकेशन, और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप अपने पेटेंट को सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेते हैं और कंट्रोलर उस चीज़ को सफिशिएंट समझता है, देन यू हैव द राइट टू सरेंडर। आप चाहते हो कि मुझे रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के बारे में आप चाहते हो, तो रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के बारे में आपको बता दूं कि रिवोक कब होगा,
जब आप जहाँ पर रिवोक करना चाहते हो उसकी कम्युनिकेशंस कर दोगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन होता है, सेम वे में आप उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन कि हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, एप्लीकेशन बनाइए और वो कम्युनिकेट हो जाती है। देन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल रिवोकेशन शैल बी कंप्लीट, देन योर रिवोकेशन शैल बी ग्रांटेड। देन नेक्स्ट है रेमेडीज के बारे में। तीन प्रकार की रेमेडीज आपको पेटेंट में मिलती हैं। आपके पेटेंट राइट्स को इन्फ्रिंग किया जा रहा है, मान लीजिए आपका पेटेंट है और उस पेटेंट के अलावा दूसरा पेटेंट कराकर कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को बेच रहा है, उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, देन आपको यू आर इन इंजरी, you have the right to gain remedies, so you have three kinds of remedies. You have three kinds of remedies. First, आप पैसा ले लो, सेकंड आप उसको जेल भिजवा दो, चौथा आप उसको एडमिन के पास एप्लीकेशन लगा दो। तीन रेमेडीज आप काम करेंगे। पहला है सिविल रेमेडी। आपके पेटेंट प्रोडक्ट को आपके पास पेटेंट होल्डर के नाम से आपके पास राइट्स हैं कि आपके पेटेंटी के राइट्स होते हैं तीन प्रकार के। प्रोडक्शन आपका रहता है, सेल आपकी रहती है और हाउ मच यू वांट टू सेल, ये सारी चीज़ें आपके राइट्स रहते हैं। प्रोडक्शन आप डिसाइड करोगे कितना होना है, सेल किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोई एक मिनरल वाटर की बोतल आती है, मिनरल वाटर की बोतल आती है, उसका पेटेंट कराया गया, पेटेंट कराने के बाद उसकी एजेंसी दे देते हैं या डीलरशिप दे देते हैं, तो उसके पास पर्टिकुलर राइट्स होते हैं कि ये व्यक्ति ही इसका काम करेगा। इसी प्रकार से पेटेंट में होता है, प्रोडक्शन पावर आपके रहते हैं, सेल पावर, और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप करेंगे ये इसके सारे राइट्स होते हैं। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आपकी बिना परमिशन के वो सारे काम करने लगा, इससे क्या हुआ, आपका पेटेंट इन्फ्रिंग हुआ। आप चाहते हो कि मुझे इसकी रेमेडी मिले, तो आप क्या करोगे, कंट्रोलर के पास शिकायत करोगे कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे पेटेंट राइट्स को इन्फ्रिंग किया गया है, और शिकायत करने के बाद वहाँ पर आपको रेमेडी दी जाएगी, जितना आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान के हिसाब से आपको भरपाई की जाएगी। इसमें सिविल कोर्ट में भी पावर रहते हैं, सीजे वगैरह भी देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल लायबिलिटी। आप चाहते हो कि इसने किया, इसको मैं जेल भिजाऊंगा, तो जेल भिजाने के साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अगर क्रिमिनल रेमेडी में 5 से 10 लाख तक का फाइन लगता है, फाइन, और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट के भी प्रावधान हैं। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी में आप अगर आपको शुरुआत के न्यायालय में न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, और इनकी एक काउंसिल होती है, उस काउंसिल में भी आप जाकर न्याय पा सकते हैं। सो दीज आर दी रेमेडीज फॉर पेटेंट। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट। पेटेंट के टाइप्स के बारे में ये पेटेंट्स, यूटिलिटी पेटेंट्स, डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट। आपने देखा होगा आम बनता है, आम की कई प्रजातियां आती हैं, दशहरा आता है, बादामी आती है, या कोई प्रकार की वैरायटी आती है, ये होते हैं हाइब्रिड। आपने कोई एक, साइंस में बोलते हैं संकरण के माध्यम से, आपने कोई अदर पौधा तैयार किया, वो पौधा कहीं ना कहीं किसी यूटिलिटी के लिए है, तो आप प्लांट पेटेंट करा सकते हैं कि ये प्लांट मैंने तैयार किया है, इसका मुझे पेटेंट राइट दिया जाए। डिजाइन पेटेंट, आपने कोई कार की डिजाइन बनाई, जैसे टार्जन मूवी थी, टार्जन मूवी देखी होगी बहुत से लोगों ने, तो अजय देवगन ने एक डिजाइन बनाई थी, उस डिजाइन को वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों ने उसकी डिज़ाइन चोरी करके वो डिज़ाइन मार्केट में ली, तो उनके बीच में विवाद हो गया था कि ये पेटेंट राइट्स मेरे पास थे, मेरे पास ओरिजिनल इसकी डीवीडी है, सीडी है, तो ये सारे राइट्स क्या कहलाते हैं, डिज़ाइन पेटेंट्स। जो आपने डिज़ाइन बनाई उसको पेटेंट कराने के लिए जो पेटेंट आप कराएंगे वो दैट इज डिज़ाइन पेटेंट। इसके बाद है यूटिलिटी पेटेंट। आप किसी चीज़ की उपयोगिता को
कोई यूटिलिटी है उसको आप पेटेंट करा सकते हो। प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको पीछे बताया है। पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता दूं, ये जो 3 प्रकार के पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम किए जाते हैं। एक तो पेटेंट ऑफिस होता है, आप जानते हैं सारी चीज़ें पेटेंट ऑफिस से गवर्न होती हैं। रजिस्टर ऑफ पेटेंट, एक रजिस्टर होता है जो पेटेंट ऑफिस होता है, वहाँ पे एक रजिस्टर होता है कि इतनी चीज़ों का पेटेंट कराया गया है। और एक ये अधिकारी होता है कंट्रोलर और अदर ऑफिसर, ये वो ऑफिसर्स होते हैं जिनके माध्यम से पूरा पेटेंट का काम किया जाता है। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ पेटेंट। रजिस्टर ऑफ पेटेंट जो होंगे पेटेंट ऑफिस में वो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होंगी। आपने नेम और एड्रेस होगा जिसको पेटेंट दिया गया है। नोटिफिकेशन ऑफ पेटेंट, असाइनमेंट्स और ट्रांसमिशन ऑफ पेटेंट्स, लाइसेंस अंडर पेटेंट्स एंड अमेंडमेंट्स, जो भी चीज़ें सारी चीज़ें अगर पेटेंट ही करता है वो सारी चीज़ें एक पेटेंट ऑफिस के रजिस्टर में एंट्री होंगी। साथ में उस पेटेंट ऑफिस में क्या होगा, पर्टिकुलर्स सच मैटर्स ऑब्जेक्टिंग, जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे और अफेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पेटेंट्स प्रेस्क्राइब्ड, ये सेक्शन 67 में रजिस्टर के बारे में बताया गया है। पेटेंट ऑफिस, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एक स्थान निर्धारित करेगी कि इस स्थान पर पेटेंट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड होगा और उसके पास ये चीज़ें होंगी। बताया गया द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, अपने यहाँ जो सारा प्रोसीजर है वो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही होता है और सारी चीज़ें स्पेसिफाई की जाएंगी कि ये ऑफिस ये काम करेगा। और वर्तमान में मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई में बौद्धिक संपदा भवन एंटॉप हिल, ये जो कार्यालय है आपका पेटेंट ऑफिस का, यहाँ पर ये कार्यालय है और ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और लिखी है सेक्शन 74 के अंतर्गत कि देयर शैल बी अ सील ऑफ पेटेंट ऑफिस, वहाँ पे सील भी होगी, उस सील के माध्यम से नोटिफाई होगा कि दिस वर्क वाज परफॉर्म बाय पेटेंट ऑफिस। कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, तो कंट्रोलर के बारे में आपको बता दूंगा कि ट्रेडमार्क का जो ऑफिसर होता है वही ऑफिसर कंट्रोलर यहाँ पर होता है और वही काम जो ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत किया जाता है वही ऑफिसर आपका पेटेंट के रूप में काम करता है और जो डिपार्टमेंट होता है वो ही कंट्रोलर यहाँ पे भी काम करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग किया गया है कि सारी चीज़ें कंट्रोलर के अंडर में की जाएंगी। पेटेंट एक्ट का जो कुछ भी काम किया जाएगा वो कंट्रोलर के अंडर में किया जाएगा और यही वो अथॉरिटी होगी जो सारा एडमिन संभालेगा। ये कुछ केस लिस्ट मैंने बनाई है कि ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ केसेस है बजाज ऑटो लिमिटेड, वीएस मोटर कंपनी, हिंदुस्तान लीवर के रामू वर्सेस, ये सारी चीज़ें आपके पेटेंट के राइट्स और पेटेंटी के अधिकारों पर कि जहाँ जहाँ पर पेटेंट्स को नेग्लेक्ट किया गया, जहाँ जहाँ पर पेटेंट को अडॉप्ट किया गया और उसके क्यों रीजन दिए गए, इन सारी चीज़ों के बारे में एक केस लिस्ट है जिसके माध्यम से आप पेटेंट्स को विशेष रूप से समझ सकते हैं। लास्ट ही मैंने आपको भारत सरकार द्वारा पेटेंट का ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है इस इमेज को मैंने लिया था गूगल से। ये सारी प्रोसीजर आप देख सकते हैं, भारत सरकार का मोनो बना हुआ है, ये आपका कोडिंग है और ये जिसके नाम दिया गया उसके नाम, ये सारी चीज़ें साथ में ये कार्यालय का दिया गया कि भारत सरकार द्वारा इसको किया गया। और इनका जो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, मैं आपको कंट्रोलर के बारे में बता रहा था, तो ये कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के बारे में लिखा है कि इस कंट्रोलर के सिग्नेचर के बाद ही कोई सर्टिफिकेट आपको ग्रांट किया जाएगा। तो ये था मेरे वीडियो पेटेंट लॉ के ऊपर। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जानकारी जरूर दीजिएगा और SKU के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।